Hello everyone, myself Shailesh Rane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 10, Working with Table, part 3. So let's start it. In previous session, we learned primary key as well as foreign key and how to create table and how to reduce the unnecessary data, that is called data redundancy. Now in this session we are going to learn creating relationship between table in base. So by now you might have designed the table we have discussed, right student? आपने last time मैंने बोला था कि आपको ये practical घर पे करना है, तो have you designed the tables? If not designed, then design after this lecture. Assume that a record of a new customer from Goregaon, Mumbai, Maharashtra is to be entered in the customer table. Till now, Maharashtra is not entered in the state table, neither in Goregaon area of Mumbai city has been entered in the city table. Insert a record of a customer with pin code value 452001. Here the value 452001 is the pin code of the Goregaon area in the Mumbai city in the state of Maharashtra. So base will accept the record entered by you, but think logically. Should this record entry be allowed? स्टूडेंट यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपने सीटी टेबल बनाया था तो उस वक्त ये पिन कोड वहाँ पे एंटर नहीं किया था, नहीं ये गोरेगांव का एरिया वहाँ पे डिफाइन किया था। तो जब भी आप ये कस्टमर टेबल में एंटर करेंगे तो लॉजिकली ये अलाउड होगा क्या? तो ऑब्वियसली नहीं अलाउड होगा, राइट? सो नो, we should not allow such an entry to be done in the customer table. So the reason is very simple. There is no corresponding record in the city table. ऐसा कोई पिन कोड का रिकॉर्ड सिटी टेबल में नहीं है, इसके लिए ये अलाउड नहीं करेगा. So that be related with this entry to enforce such a restriction. We should use the relationship feature of a base. Establishing relationship between table will restrict the user from entering garbage data in the reference field. So इसके लिए स्टूडेंट अगर हम लोग इसके लिए रिलेशनशिप फीचर यूज़ करेंगे तो ये अवॉइड करेगा या रेस्ट्रिक्ट करेगा जो पिन कोड की सिटी टेबल में है ही नहीं उसको कस्टमर में एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो let us learn how to establish the appropriate relationship among different table of the database. So here click relationship option. From the tool menu select insert add table. Alternatively you can click the add table button. स्टूडेंट अब ये जो प्रैक्टिकल है ये मैं आपको यहाँ पे ओपन ऑफिस में एक्सप्लेन करता हूँ. तो सबसे पहले हमें दो टेबल बनाने हैं, एक कंट्री आईडी और एक स्टेट. अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टेबल बनाए हैं बट यहाँ पे मैं फिलहाल कंट्री, स्टेट और सिटी ये तीन टेबल क्रिएट करता हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू. फर्स्ट आईडी इज कंट्री आईडी, right? Country ID should be number, then country name and field type should be varchar. That is okay. So country ID I set primary key. I save this table by name country. Okay student, so it is saved. Then in country table I use the value 1, country name India, country ID 2, Japan 3, country ID 3, Sudan. Okay, I save this data. After that student again I create the state table. So for state table I am writing here state ID, field type I am using number. After that I am writing here country ID, or I write first state name text varchar, and after that I am using here country ID, right? So here your country ID is the foreign key, we no need to mention here, but just state ID we have to keep primary key. So I save this table by name state, right student? So in state table state ID 1 I am writing here Gujarat and country ID 1 because India is in one ID, right? Then after that 2 I am writing Maharashtra
country ID should be 1. Foreign key will be repeat again and again. Then I'm writing here 3. Delhi, country ID should be 1. So here your state table is completed. Now third table I am creating here. First I write here city ID and number. After that I am writing city name, text varchar, and after that I am writing here state ID. Right student? And I save this table by name city. अच्छा, प्राइमरी की अप्लाई करना है हमें, तो सिटी आईडी पे राइट क्लिक करके प्राइमरी की सेव दिस टेबल बाय नेम सिटी. ओके स्टूडेंट. और सिटी टेबल के अंदर हम राइटिंग नाउ 1 सिटी नेम वापी, स्टेट आईडी 1. देन 2 सिटी नेम सूरत, state ID 1. After that, here actually I am using the pin code student, right? City ID no need to write, we will write city pin code. So I again open it, edit, and in place of city ID I am writing city pin code. Okay, so here 396195 396789. This is not the original pin code, but just for your reference or understanding I am writing here this pin code student. Then again 345678 I am writing here Rajkot, state ID 1. After that here I am writing 433566 I am writing here Borivali, state ID 2. Then 234567 Thane I am writing state ID 2. Then again I am writing here Gurgaon and state ID 3 Delhi, that is. Okay student, so I save this table. Now what I have to do, I have to show you this relationship how to create over here, right? So how to create this? For that click in query in design view, add the table. Same way you can see here add table, right? So from here I am adding the table. First I will add country, then state, then city, right student? Let's see now what happened. To create relationship, just use drag and drop option. Click on country ID field, primary key of the country table, drag the country ID field to the country table and drop it to the country ID field of the state table, right student? अब ये कैसे करना है तो देखना, ये अपना सिटी टेबल है, ये अपना स्टेट टेबल है, ये अपना कंट्री आईडी है. ये कंट्री आईडी यहाँ पे वापस यूज़ किया गया है, राइट? तो ये यहाँ से प्राइमरी की को सिलेक्ट करना है और कंट्री आईडी पे लाके कनेक्ट करना है. तो यहाँ पे जो कंट्री आईडी प्राइमरी की था, यहाँ पे जाके वो बनेगा फॉरेन की. उसी तरीके से यहाँ पे ये स्टेट आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे आएगी ये बनेगी फॉरेन की. ओके स्टूडेंट, ओके. आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम लोग को रिलेशनशिप भी जानना है कि रिलेशनशिप किस तरीके से वर्क करती है. यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया है कि ये रेफरेंस फील्ड है और यहाँ पे यही रेफरेंस फील्ड यूज कर रहे हैं. जैसे कि कंट्री आईडी 1 है इंडिया, ये रिपीटेड मल्टीपल टाइम, तो रिकॉर्ड इंडिकेटिंग 1 to मैनी रिलेशनशिप, राइट? यहाँ पे ये एक बार है जो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 to मैनी रिलेशनशिप. अच्छा, इसमें और एक चीज़ हमें जो जाननी है वो है कॉलम टाइप्स डू नॉट मैच. अगर यहाँ पे एक बार लिखा है कंट्री आईडी, दूसरी बार लिखा है कंट्री आईडी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है स्पेलिंग में, यानी सपोज यहाँ एक में लिखा है कंट्री आईडी टेबल का नाम, कंट्री आईडी और कॉलम का नाम, और दूसरे में लिखा है सिर्फ कंट्री, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. दोनों जगह पे स्टूडेंट सेम नाम होना चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी.
Now, what is a referential integrity? Once the relationship between two tables is created, double click the line depicting relationship. It means relations dialog box as shown in figure 10.30 will be displayed. Till now we are very clear with the statement that the country table and the state table are related with each other. Thus a user can enter data of only those countries detailed in the state table which have been already entered in the country table. So first India was inserted in the country table, later three states of India were inserted in the state table, right? उस वक्त हम लोग इंडिया का सिर्फ कंट्री आईडी यूज कर रहे हैं, तो यही इन लोग ने एक्सप्लेन किया है. बट अभी एग्जैक्टली ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वापस वो लोग कि बट व्हाट इफ नाउ यूजर डिलीट्स अ पेरेंट रिकॉर्ड फ्रॉम द कंट्री टेबल. उन्होंने क्या किया, कंट्री टेबल से पेरेंट रिकॉर्ड को ही डिलीट कर दिया. व्हाट अबाउट इट्स रिलेटेड रिकॉर्ड इन द अदर टेबल. तो अगर कंट्री आईडी कंट्री टेबल में से डिलीट कर दी और जो हम लोग ने एज अ रेफरेंस की या फॉरेन की तरीके से स्टेट टेबल में यूज़ की, तो उसका क्या होगा आगे. तो से फॉर एग्जांपल वी हैव एंटर से 10 रिकॉर्ड इन द स्टेट टेबल दैट हैव यूज कंट्री आईडी 1. व्हाट शुड बी डन विद द रिकॉर्ड कंट्री टेबल विद द कंट्री आईडी एज 1 इन द स्टेट टेबल, राइट. तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो इफ द यूजर डिसाइड टू डिलीट अपडेट दिस रिकॉर्ड फ्रॉम द मास्टर टेबल, there must not be any enter in the state table without a related record in the country table. This concept is known as referential integrity, right student. यानी जब भी ऐसा होगा कि मान लो कि एक आपके पास पेरेंट टेबल है, एक चाइल्ड टेबल है. अब पेरेंट टेबल में से आपने जो रिकॉर्ड आप यूज़ कर रहे हो चाइल्ड टेबल में, वही पेरेंट टेबल से डिलीट कर दिए, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, चाइल्ड टेबल में एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. तो इस टाइप का जब भी कंसेप्ट आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. सो नो अनमैच फॉर्म की वैल्यू शुड एग्जिस्ट इन द डेटाबेस. तो इसकी वजह से कोई मैच होगा ही नहीं कि वैल्यू, तो उसकी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट स्टूडेंट. सो द डेटाबेस डिजाइनर शैल चूज द सेट वन ऑफ द 4 ऑप्शन शोन इन फिगर 10.30 डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. These options allow to maintain referential integrity in the database while performing or update or delete operation. So student, जब भी ये करना है तो इसको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, अपडेट ऑप्शन में नो एक्शन, डिलीट ऑप्शन में नो ऑप्शन, नो एक्शन. यानी ये जब हम लोग सिलेक्ट करके तो ये हम लोग डिलीट करना चाहे तो भी ये डिलीट नहीं होगा. एनफोर्सिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी ये एनफोर्स करेगा कि अगर आप इसको डिलीट करने जाओ तो यहाँ पे मैसेज पॉपअप हो जाएगा. यानी क्या मैसेज पॉप होगा, अगर हम लोग नो एक्शन सिलेक्ट करते हैं तो दिस ऑप्शन स्टेट दैट यूजर शुड नॉट बी अलाउड टू डिलीट और अपडेट एनी रिकॉर्ड, राइट स्टूडेंट. यानी एक बार अगर हम लोग ने वो टेबल में वो एंटर कर दिया डेटा, तो उस पर अगर हम लोग ने नो एक्शन सिलेक्ट किया है तो कोई भी यूज़र उसको ना ही एडिट कर सकता है फिर से, ना ही अपडेट कर सकता है, ना ही डिलीट कर सकता है, राइट. So select no action option and then try to delete the record containing India's detail. Base will confirm whether you want to delete record or not and then will display message is shown in figure 10.14. यानी स्टूडेंट अगर आप डिलीट करने जाएंगे तो इस टाइप का मैसेज आपको वहाँ पे आएगा, एनफोर्सिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यूजिंग नो एक्शन. आया स्टूडेंट समझ में. अब नेक्स्ट जो है आपका डेफिनेशन वो है अपडेट कैस्केड. व्हाट इज अपडेट कैस्केड? This option state that if user is allowed to delete or update reference value, all the related records should be automatically deleted or updated. यानी अगर आपने एक टेबल में कोई वैल्यू डिलीट कर दी तो उससे रिलेवेंट जितने भी रेफरेंस थे वो सारे के सारे टेबल में से वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी या ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज सेट नल. नाउ व्हाट इज द सेट नल? These options state if user delete or update the reference field, all the related record will hold null value in the reference field. You can similarly create the relationship between the other table of the modern electronic store database. You can add other table by clicking the add table icon in a toolbar as shown in figure. Right student? जैसे हम लोग को और टेबल पे ऐड करने को हम लोग ऐड कर सकते हैं. Once you create a relationship between all the table sample database, relationship window will look similar one shown in figure 10.16. यानी इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो एक पूरा मोबाइल रिलेशनशिप जो एक स्टोर था उसमें जितने भी टेबल्स हैं, जैसे कि मान लो कि ऑर्डर टेबल, एम्प्लॉय टेबल, कंट्री टेबल, स्टेट टेबल, सिटी, सबका रिलेशनशिप यहाँ पे बनाया गया. यानी जो टेबल में जो प्राइमरी की है उसको दूसरे टेबल में जब यूज़ करते तो फॉरेन की, इसका सबका रिलेशन आ गया, राइट.
अब यहाँ पे है कि एडिटिंग रिलेशनशिप, अगर हमें रिलेशनशिप एडिट भी करना होगा तो उसके लिए क्या चॉइस है, तो वी कैन डिलीट और एडिट अ रिलेशनशिप, जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया ना स्टूडेंट। अब मान लो कि इसको हम लोग को डिलीट भी करना है तो हम लोग इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से वापस इसको कनेक्ट करना है फिर से कनेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। For that, we just have to open the relationship screen and then click on the desired relationship line draw between two tables. By doing so, the line will get thickened. After this, if we right click, a pop-up menu will be visible as शून्य का 10.6 हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। Now, रिलेशनशिप के कितने टाइप है, तो वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। तो वन टू वन रिलेशनशिप क्या है स्टूडेंट, as its name suggests, one-to-one relationship indicate that one specific record of a particular table has one and only one corresponding record in the other table। यानी जो टेबल का एक रिकॉर्ड उस टेबल मास्टर टेबल में है उसी का वो एक ही रिकॉर्ड दूसरे टेबल में भी जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। यानी डू नॉट गेट सरप्राइज एज इट्स नाउ नॉट अ न्यू टू अस एंड वेरी कॉमन इन आर डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, थिंक ऑफ अ थिएटर। अब थिएटर में अगर कभी विजिट किए हो तो वहाँ पे कैसा होता है, हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन अ चेयर, एक चेयर पे एक ही बंदा बैठेगा, एक चेयर पे दो बंदे तो नहीं बैठेंगे, राइट। इसी तरीके से अरेंजमेंट होती है थिएटर में स्टूडेंट, नेचुरली वन, देन हाउ मैनी सीट्स कैन बी ऑक्यूपाइड बाय वन पर्सन। और ऐसा होता है क्या, एक पर्सन दो चार सीट बुक करके रखता है, नहीं, एक पर्सन एक ही चेयर पे बैठेगा, ऐसे तो नहीं ना वो दो चार चेयर पे बैठने जाएगा, नॉट लाइक दैट, राइट। तो थिएटर में एक पर्सन एक ही चेयर पे बैठ सकता है और एक चेयर सिर्फ एक ही पर्सन के लिए होगी, तो वहाँ पे हम लोग जो रिलेशनशिप बोलेंगे उसको बोलेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। सो वी कैन से दैट द रिलेशनशिप बिटवीन चेयर एंड पर्सन इज वन टू वन। You can think of relationship between your class and class teacher or library and library card issued to a student. You will definitely agree that any class in your school will have one and only one class teacher, right student? एक क्लास में एक टाइम पे एक ही टीचर एक्सप्लेन करेगा कोई भी टॉपिक, राइट। ऐसे तो नहीं कि क्लास चल रहा है और दो तीन टीचर आ गए और साथ में एक्सप्लेन करना चालू कर दिए, नॉट पॉसिबल, राइट। सो एट द सेम टाइम एनी टीचर इज असाइन वन एंड ओनली वन क्लास to look after. So we can say that the class and class teacher is the example of one-to-one relationship, right student? So observe relationship created in our sample database. The field order ID in the order table is related to the field order ID and order shipment table. ये इन्होंने जो हम लोग ने प्रैक्टिकल किया था यानी ये प्रीवियस रिलेशनशिप उसका एक्सप्लेन किया है। चलो आपको वन टू वन रिलेशनशिप समझ में आई। अभी हम लोग देखते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या है। The most common type of relationship between the table is one-to-many relationship. In this type of relationship, one specific record of a particular table may have many corresponding records in the other related table of the database. One customer can purchase multiple products, right? Similarly, one city belongs to the single state, but one state can have multiple cities. Possible है ना स्टूडेंट? जैसे कि एक स्टेट के अंदर मल्टीपल सिटी हो सकते हैं, एक सिटी के अंदर मल्टीपल एरिया हो सकते हैं, एक कंट्री के अंदर मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनता है वो है आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप। इमेजिन अ क्लास टीचर सिनेरियो इन योर स्कूल। देयर कैन बी वन एंड ओनली वन क्लास टीचर टू एनी क्लास, बट एनी क्लास टीचर डेफिनेटली हैव मैनी स्टूडेंट, राइट। एक क्लास के अंदर एक क्लास टीचर मैनी स्टूडेंट्स को ही एक्सप्लेन कर रही होगी, राइट। सो दैट्स वाई द रिलेशनशिप बिटवीन क्लास टीचर एंड स्टूडेंट इज वन टू मैनी। अब हम बात करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। पहले देखा वन टू वन, फिर देखा वन टू मैनी, अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहाँ पे होती है, तो द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ऑकर्स इन द केस ऑफ सम स्पेसिफिक रिकॉर्ड विच हैज टू बी स्टोर मोर देन वंस इन बोथ द टेबल। In our example of modern electronic store database, we have maintained information of employees. Till now, we have assumed that the employee will hold a single designation. At a time in organization, employee may hold multiple designation. Student, इसका एक लाइव एग्जांपल देना चाहे तो यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल भी बताया उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक एम्प्लॉय है और इसका डेजिग्नेशन है। तो अभी एक एम्प्लॉय का एक से ज़्यादा डेजिग्नेशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल, एक जो पर्सन है वो एज अ क्लास टीचर है, फिर वो एज अ प्रिंसिपल है, तो ये उसके दो डेजिग्नेशन हो गए,
राइट। और वही क्लास टीचर मैनी स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप जनरेट हो रही है वो है आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। डेजिग्नेशन टेबल में भी उसके 2 आईडी हैं और एज ए एम्प्लॉय करके भी उस एम्प्लॉय टेबल में भी उसके 2 आईडी बन रहे हैं, यानी वहाँ पे जो रिलेशनशिप जनरेट हो रहा है वो है आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सो we don't have any direct relationship between table, employee and designation. This is because database many to many relationship are split into two one to many relationship by creating third table. So in our example we have created new table named employee designation, which has one to many relationship with the employee table and designation table both. So does employee designation table act as a junction table, right, between the employee and the designation table. So till now we have created table, decided primary key field and foreign key field and related table with each other. Now let us discuss the field property. अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि field property क्या है exactly और इसको use किस तरीके से करना है. So as discussed in earlier chapter, before working with the data, we have to create a well-defined structure of a table. To define a field for any table, we have to perform the following step. So student, specify the field name, choose a proper data type एंड राइट डिस्क्रिप्शन, जो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। जब भी हम लोग कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो उस वक्त हम लोग को ये 3 चीज़ें याद रखनी है, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन, राइट। तो इसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है फील्ड प्रॉपर्टीज। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे नया है फील्ड प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या है, तो मैं यहाँ से प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर आप जब भी कोई नया टेबल बनाते हो, अब मान लो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आईडी, तो आईडी में एंट्री रिक्वायर, यानी ये कंपलसरी आपको रिक्वायर है, तो यहाँ पे हमेशा होता है अगर आप प्राइमरी की सेट कर दे तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो ये यस हो ही जाएगा, यानी ये ऑटोमेटिक वहाँ से एंट्री रिक्वायर का ऑप्शन निकलेगा। प्राइमरी की निकाल देते हो तो यहाँ पे येस या नो आप 2 ऑप्शन रख सकते हो, यानी अगर आपको ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक भी रख सकता है कोई यूज़र, अगर नहीं रखना है तो उसमें लिखने के लिए येस रखना है। फिर उसकी लेंथ, जो एंट्री लिखेंगे उसकी मैक्स टू मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए, देखो एंटर द मैक्सिमम टेक्स्ट लेंथ पर मिनट, तो 50 तक उसको अलाउड किया गया। आपको लगा नहीं मेरे को 5 तक ही अलाउड करना है, 5 से ज़्यादा आईडी नहीं बनना चाहिए, अब यहाँ पे 5 लिख सकते हो। फिर उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, अगर मान लो कि मेरे को एक सिटी नाम है वापी, जो बार बार नहीं लिखना है, तो एक बार यहाँ पे मैं वापी लिख दूँ, जैसे मेरी नई एंट्री स्टार्ट होगी ना तो वहाँ पे वापी बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ऑटो वैल्यू, एंट्री रिक्वायर, राइट, फिर लेंथ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। फिर उसमें और एक ऑप्शन आता है स्टूडेंट फॉर्मेट का। अब फॉर्मेट यानी ये कब आएगा, तो यहाँ पे देखना आप, जैसे फॉर्मेट एग्जांपल आप करोगे, अगर आपको डेट में कुछ चेंजेस करने हैं, राइट, टेक्स्ट में करना है, अलाइनमेंट करना है, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ डेट और डेटा टाइप भी ले रहा हूँ मैं डेट। अब देखना यहाँ पे फॉर्मेट एग्जांपल में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि डेट को मैं किस फॉर्मेट में सेव करूँ, मेरे को किस फॉर्मेट में ये डेट चाहिए, जैसे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग एंड प्रिंटिंग द डेटा दैट वी एंटर इन द फील्ड। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वे द डेटा इज स्टोर एंड इट डज नॉट चेक द इनवैलिड एंट्री, बट ये इनवैलिड एंट्री चेक नहीं करता। The format property uses different settings for different data type. Base provides some predefined format for number, date time and yes no data type. इसके लिए ये predefined format set है, जैसे कि डेट टाइम चेंज करनी है, नंबर चेंज करना है, yes no ऑप्शन में अपडेट करना है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। ये देखो, ये इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट, राइट। सो हियर योर चैप्टर नंबर 10 इज completed. You have to practice at home, student. If you not practice, then it is difficult to write answer in MCQ in exam. So whatever you practice, note down in your notebook as also, and if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number. In next session we will start chapter number 11, that is retrieving data using queries. Thank you students, have a good day.